So we started with the inflation, and under the type of basic inflations, we have discussed the various types. Under the types, we have done on the behalf of the speed, it's walking, creeping, running and galloping. Then after we discussed on the behalf of the time period, it may be the wartime inflation, it may be a post-war time period inflation, and it could be a peacetime period inflation. So three types of inflations were there. Then after we discuss about the different other kinds, causes of inflation. Cause can be a demand pull inflation, cost push inflation. It could be due to the increase in profit margins. I didn't think so we have read down, but in the later on stage, I'll just add one more type of inflation, that is profit margin inflation. Because of increase in the profits that is being determined by the producers only. Producer wants to increase its profit, he will increase the profit margin with cost. That's why the price is supposed to be on increase up. Earlier, he was taking a profit margin to be only 2 rupees or 5 rupees. So, cost plus 2 rupees was the price. Are you getting it? How the price determines? किसी भी चीज का price कैसे determine होता है? Cost plus profit margin. Cost stands for whatever is the production cost of the commodity. Production cost of the commodity is like say 5 rupees is the input cost. Input cost is 5 rupees plus we are adding some kind of profit margin. अगर मैं आपको अपनी cost पे commodity बेचूंगी तो obviously मेरा profit कहाँ होगा? So cost plus profit margin becomes price. 5 rupees मेरी cost थी, 2 rupees मैंने profit margin रखा, तो 7 rupees market का price था. लेकिन अगर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर दूं, 5 रुपीज कॉस्ट है, अब मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपीज कर दिया, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा? 10 rupees. So sometimes the inflation occurs because of increase in the profit margin from the producer side. Okay, so that is another kind of or the cause of inflation. Inflation आने का एक कारण ये भी हो सकता है. Other types we have done, many of what there. Wartime, yeah. Other was the core inflation and the built-in inflation. Core inflation relates to the all the commodities except of food and energy. These two things are not supposed to be taken under the core inflation. Reason behind it, these are very volatile. इनके अंदर जो प्राइसेस हैं बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, फूड प्राइसेस में और एनर्जी प्राइसेस में. इस वजह से उसको हम कोर इन्फ्लेशन नहीं मान सकते. मेन सारा इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ दो कमोडिटीज की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इसलिए हम कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों कमोडिटीज या दोनों चीजों को हम ऐड नहीं करते हैं. बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फॉर द सर्विस क्लास पीपल. तो सर्विस क्लास पीपल की जब सैलरीज बढ़ती हैं, सैलरीज नहीं बढ़ रही, तो वो जो इन्फ्लेशन दिया जाएगा, डेरेंस अलाउंसेस दिए जाएंगे, वो किस लिए दिए जाएंगे? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो गई. पहले वो जितनी अमाउंट से अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे थे, अब वो उतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन आया. तो वो इन्फ्लेशन जो होता है मेरे को मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने से रोकता है. That is for the employees. That is called built-in inflation. Done. So, super core inflation is also there. Many other inflations are there. Then after we discussed about the types of inflation, we said, sorry, measurement of inflation. Inflation को कैसे calculate किया जाता है, माप के कैसे जाता है? तो we said there were two types, the WPI and the CPI. WPI means to say wholesale price index. It means जब price को producers point of view से देखा जाता है. It is an initial stage during the production. क्योंकि वहां से प्रोडक्शन बनेगा, वो मार्केट में आएगा और हमारे पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से हमारे पास आएगा, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ होगा. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिटेलर के पास होलसेलर पे आने के लिए. जब आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कमोडिटी का प्राइस प्रोड्यूस करने के टाइम पे जो डिटरमाइन करते हो, आप किसके बिहाफ पे करोगे? फैक्टर्स कॉस्ट. आपको चीजें कितनी महंगी मिल रही हैं, उसी के हिसाब से तो आप कॉस्ट बेयर करेंगे ना. So that is somewhere somehow in between before the production comes into the market. ये initial stage of production process की बात होती है. जो CPI होता है वो मार्केट में कंज्यूमर के पास आने तक के बारे में बात होती है. Done. Then we discuss many process of how it comes into the market. Initially WPI के different series आई, कैसे कैसे उसको start किया गया. Later on we come to the conclusion there is a 697 items are been included, which is divided into three parts: primary, fuel and energy, and third one is manufacturing goods. And on the behalf of these three
categories, we have divided the percentage in the total weightage as well. 22.6% was taken, let it be 23% is to be the food items, 13% is for fuel and something, and 64.6 stands for your मैन्युफैक्चरिंग. तो अल्टीमेटली हमने ये बताया कि टोटल, इसके बाद हमने आइटम्स भी डिवाइड किया था. 13 आइटम्स आई थिंक इन केम इनटू द फ्यूल एंड हाउसिंग, 69 and above and low we have a numbers. So ultimately what we decided कि इकोनॉमी में WPI कैसे डिसाइड होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे डिसाइड होता है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट CPI. So that whole part we have done, इसके टाइप्स, इसके मेजरमेंट हम कर चुके हैं. Today we will discuss about the CPI, Consumers Price Index. Now the Consumer Price Index, as we know that it is about the consumer's concern. Whenever the consumer is purchasing power has been affected because of inflation, that is called Consumer's Price Index. It is also calculated as a retail inflation as well. कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन आता है वो वाला इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं. So it means a basket of commodities. Earlier you were purchasing and now you are purchasing. There is a difference in the prices of the two commodities, that is called consumer price index inflation. तो हमारी purchasing power इफेक्ट हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से. सेम commodities और goods and services हम बाय नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो consumer price index के थ्रू मेजर किया जाता है, के थ्रू मापा जाता है. Done? Now whenever we are starting with the consumer price index, हमने कल आपसे बात की थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है. उन्होंने सारी कमोडिटीज बनानी है, हमने सारी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मैन्युफैक्चरिंग अलग कर दी, फ्यूल एंड फूड अलग कर दिया, एंड प्राइमरी आर्टिकल्स अलग कर दी. लेकिन जब कंज्यूमर ने वो चीज कंज्यूम करनी है, सब कंज्यूमर्स सेम नहीं है ना. सम आर एग्रीकल्चरिस्ट, सम आर urban people, some are in rural area, some are in urban areas, some are industrialists, some are manufacturers. So all people are different categories. अगर सिर्फ और सिर्फ वीट का प्राइस बदलता है तो उससे एक एलीट क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक पुअर क्लास को उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. गोल्ड का प्राइस अगर चेंज होता है उससे एलीट क्लास को फर्क पड़ेगा और लो क्लास को फर्क नहीं पड़ेगा. So that's why they said that we need to calculate the inflation on the behalf of consumer price index should be 4 categories. हमने इसको 4 टाइप्स में और 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. That is consumer price index for the agricultural laborers, consumer price index for industrial workers, consumer price index for rural class stands for rural labor, and consumer price index from that is UNME, urban non manual employees. These are the 4 types we have taken under which the CPI is being calculated. Agricultural laborers, industrial workers, rural laborers, urban non मैनुअल एम्प्लॉयज. राइट डाउन द कैप, इनका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए. एग्रीकल्चर लेबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल लेबर एंड अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. 4 तरह के होते हैं जहां पे हम सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी. ओके, राइट डाउन, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. So under this, let's say it's the first, second, third, fourth. I'm talking about the second one. It started in 1982 first of all as a base year, and what they said that industrial workers का मतलब क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज में काम करें. इसका मतलब वो अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं, रूरल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं. अर्बन एरिया में बात कर रहे हैं ऑल द सैलरी क्लास पीपल, गवर्नमेंट सैलरी क्लास पीपल एक्सेप्ट एम्बेसीज एंड बैंकिंग. इन दोनों क्लास को छोड़कर जो भी हमारी वर्किंग क्लास होती है उनका इन्फ्लेशन रेट आईडब्ल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है. इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट किया जाता है, वो इंडस्ट्रियल वेज रेट के अकॉर्डिंग उनका कैलकुलेट होता है.
So on the behalf of the same, they got the dearance allowances in twice in the year. एक साल में 2 बार जो dearance allowances आते हैं वो इसी के भी हाफ पर दिए जाते हैं. बस इसमें 2 चीजों को नहीं ऐड करेंगे, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल इंश्योरेंस एंड सभी गवर्नमेंट क्लासेस को लिया जाता है एक्सेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड एम्बेसीज. इन दोनों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, उनकी इन्फ्लेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट की जाती. डन. सो इट्स कंप्लाइड बाय लेबर ब्यूरो. एक तो इसको लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करती है, कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो. So, इसमें मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख दूंगी ताकि आपको इसको कंपेयर करना इजी हो जाए. ठीक है. एक तो पहले कब स्टार्ट किया 1982 में, लेबर ब्यूरो इज स्टार्टिंग टू कैलकुलेटेड इट, कंपाइलिंग इट, एंड 260 आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई. मतलब टोटल 260 आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है जी. प्लस सर्विसेज. और एक चीज आपको वैसे भी हम जब बाद में बात करेंगे, यहां पर ही ये वैसे भी आपको फर्स्ट डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स के बारे को कैलकुलेट करता है जबकि सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है. डन. So it includes 260 items, commodities plus services into the consideration of calculating a CPI. Further, now at present, 2016 is a base year for calculating industrial workers के लिए. जो बेस ईयर जिसके साथ कंपेयर करेंगे ना, बेस ईयर से कैसे कंपेयर करेंगे हम, सीपीआई कैलकुलेट कैसे करेंगे. हर एक का सीपीआई सेम ही होगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी, बट डिपेंड्स अपॉन कि वो इंडस्ट्री का कर रहे हो, लेबर का कर रहे हो, एग्रीकल्चर का कर रहे हो या फिर नॉन मैनुअल वर्कर्स का कर रहे हो. दैट इज द कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन अ गिवन ईयर एंड कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन प्रीवियस ईयर. पॉइंट कि वही जैसे हमने आपसे बताया, हमने अगर चेंज देखना है तो हम कैसे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट, द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बास्केट कह लीजिए. अभी उसका क्या प्राइस है, जो भी मार्केट आपने अभी करंट ईयर में, वाई स्टैंड्स फॉर करंट के बाद मैंने वाई लिखा है, करंट ईयर है अगर इसको लिखना है तो आपको, द करंट ईयर अपॉन द बेस ईयर into 100, वो सीपीआई कैलकुलेट होगा. सेम एज इसका जो बेस ईयर होगा वो 2016 होगा. जब डब्ल्यूआई निकालेंगे ना तो जो बेस ईयर होगा वो 2016 होगा, ये वाला, और ये वाला जो होगा वो करंट होगा, 2013 लेंगे हम, 23 लेंगे, एंड उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा सीपीआई विद द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. गेटिंग. लेबर ब्यूरो इसको कैलकुलेट करता है. दैट्स इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर लेबरर्स. इसमें हम कौन से लेबर्स लेंगे, एक तो हम रूरल एरिया की बात करेंगे, दूसरा हम ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स की इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो द लेबर ब्यूरो रिवाइज द मिनिमम वेज रेट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एट डिफरेंट स्टेट्स. इसमें क्या किया जाता है, हम एग्रीकल्चर लेबरर्स की मिनिमम वेज रेट कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम इसमें किसकी इनकम डियरेंस अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं ना, गेटिंग अ पॉइंट. कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, आप लिख रहे हैं, कुछ इसमें एड अपॉन मैं अभी इसके साथ ही कर सकती हूँ. एक तो इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, एक हमारे पास इसमें डियरेंस अलाउंसेस किया जाता है. तो इसमें क्या किया जाता है, मिनिमम वेज रेट डिसाइड की जाती है एग्रीकल्चर लेबर की. MIN स्टैंड्स फॉर मिनिमम वेजेस फॉर द एग्रीकल्चर लेबर फॉर ऑल द स्टेट. सारी स्टेट्स की अलग अलग है क्योंकि सब स्टेट्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है. तो इसमें मिनिमम वेजेस डिसाइड किए जाते हैं. अगेन इट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो. लेबर ब्यूरो ही इसको कैलकुलेट करता है. अब
हमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वेजेस ऑन द बिहाफ ऑफ विच डेटा वी विल कैलकुलेट अ मिनिमम वेजेस. वी विल लाइक टू फाइंड आउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? क्या? इफ यू रिमेंबर हमने पॉवर्टी का किया है, उसमें हम क्या कहते थे, पॉवर्टी कैसे कंजम्पशन कहते हैं, पॉवर्टी को कैसे मेजर करते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे तो करते थे. सब फ्लैश आउट है, कोई बात नहीं. पॉवर्टी इज कमिंग इन दिस वीकेंड ओनली बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट. सो आई टोल्ड यू दैट आपको जब भी पॉवर्टी को मेजर करना है तो हम किसके बिहाफ पे किया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. तो जब आपके रूरल एरियाज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया जाएगा, कौन करेगा, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसके डेटा को कलेक्ट करेगा और ये देखेगा कि आपको एक रूरल एरिया में कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है मिनिमम. Getting? And on the behalf of that minimum consumption expenditure, we will able to find out how much wages are required. एक रूरल एरिया में रहने वाले लेबर को मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर. जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है हमने सर्वे से निकाला, तो उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए इतनी वेजेस आपको मिलनी चाहिए. इसके बिहाफ पे आपकी मिनिमम वेजेस निकाली जाती हैं. सो दैट्स व्हाई हाउ वी फाइंड आउट कि इन्फ्लेशन अगर आएगा तो क्या आप अपनी मिनिमम वेजेस से वो कंजम्पशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी मिनिमम वेजेस भी बढ़नी चाहिए. आर यू गेटिंग इट? मिनिमम वेजेस कैसे बढ़ते हैं, तुक्के से थोड़ी घर बैठे बैठे वी आर कैलकुलेटिंग आज 50 रुपए सैलरी थी आज 100 कर देते हैं. हाउ वी फाइंड आउट? On the behalf of your consumption expenditure, you are getting these 5 basic commodities which is necessary. आपको जीने के लिए रूरल एरिया में ये 5 चीजें जरूरी हैं. इनके प्राइस में इतना इतना इन्फ्लेशन आया तो आपका टोटल खर्चा भी बढ़ गया. जब आपका खर्चा इतने % बढ़ा तो आपकी वेजेस भी इतने % बढ़नी चाहिए. तो मिनिमम वेजेस आर बीइंग डिसाइडेड बाय द दिस वे according to the CPI of an agriculture laborers. And you can write down that is a consumption expenditure survey. The consumption expenditures, consumer expenditure survey, consumer हो या consumer consumption expenditure data या survey collect किया जाता है collected by the NSSO. Collected by NSSO, and on the behalf of this kind of inflation is going on into agriculture sector and how much increase there in the agriculture wage rate. Done? So there we have a correlation between the both कि आपका जितना minimum wages inflation आएगी उतनी आपकी wages आपको बढ़ानी पड़ेगी. For that they have 75 because what's the reason? हम consumption expenditure को क्यों wage rate बढ़ाने का reason मान रहे हैं? अर्बन एरिया में नहीं माना जाता, रूरल में क्यों माना जाता है? Because they said that in agriculture labor 75% of their salaries are spending on their consumption. Basic food items में वो अपना खर्चा करते हैं rather than the luxuries, rather than the savings, rather than the investments. So उनका consumption पे अपनी income का 75% जो है खर्चा होता है. तो इसका मतलब अगर उनका 75% food articles पे खर्च हो रहा है तो inflation आएगा तो सबसे पहला hit उनकी consumption पे पड़ेगा. So that's why we need to revise their salaries, wages as well. Getting a point? While the industrial workers, they are not spending much more of their 50% of their income on the consumption. ये 50% से ज्यादा या 60% से ज्यादा अपना कंजम्पशन पे नहीं खर्च करते, ये लग्जरीज आइटम पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में खर्चा करते हैं. तो इसलिए इनका ये जो है वो इसके बेसिस पे बनता है. देन एंड इसके लिए इन्होंने क्या किया, एनएसएसओ ने क्या किया है, ये फिक्स्ड है, ये हर बार ऐसा ही रहने वाला है. इसलिए आई एम गिविंग 600 villages on monthly frequency or twice in the time lag included 260 items. तो इसमें भी थोड़ा मेसी सा हो गया है. I'm not getting to, I'm removing it. इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं.
इसमें भी हम जब एक कंजम्पशन सर्वे ले रहे हैं, अब सर्वे लेना किसका है? दे हैव टेकन 600 विलेजेस का ऑन द मंथली बेसिस पे इनका डेटा लिया जाता है 3 वीक्स के टाइम लैग पे। वीक्स के टाइम लैग पे, और इसके डाटा के लिए वो 260 आइटम्स ही लेते हैं। अब इसके बारे में आपको एक लाइन में आई विल लेट यू नो। दे आर टेकन 600 विलेजेस डेटा, किस चीज का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 260 आइटम्स ली। जब आप विलेजर्स हो, आपसे डेटा कलेक्ट किया, मैंने ऐसे 600 विलेज का डेटा कलेक्ट किया मंथली बेसिस पे। आज डेटा कलेक्ट किया तो आपकी 260 आइटम का डेटा का पूछा, आप इतना इनकम में कितना आटा लिया, कितना चावल लिया, कितना राइस वो लिया, सब कुछ लिया। तो आपके 260 आइटम्स का मंथली डेटा कलेक्ट किया 600 विलेजेस का विद द टाइम लैग ऑफ 3 वीक्स। फिर 3 हफ्ते के बाद फिर से आपका वही डेटा कलेक्ट किया। उससे क्या पता चलेगा? इन्फ्लेशन। क्या एक महीने के अंदर कोई रेट चेंज हुए? आप अगर अनियन का प्राइस बढ़ गया या किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो आपकी टोटल कंजम्पशन खराब हो जाएगी ना। आप जो मिल्क पे 2 किलो खरीद रहे थे, अगर वो महंगा हो जाता तो मे बी 1.5 खरीदना शुरू कर दोगे। जहां पहले 5 किलो आप अनियन या आप टोमेटो ले रहे थे, अब आप इन्फ्लेशन आने की वजह से हो सकता है 2 किलो या 1 किलो लेना शुरू कर दो। तो आपकी कंजम्पशन क्या इफेक्ट हुई इस बिहाफ पर? 600 villages, monthly data with the 3 weeks time lag of 260 items, and that has been collected by consumption expenditure survey data of NSSO. इसके बिहाफ पे मिनिमम वेजेस होती हैं, लेबर ब्यूरो इसको डिफाइन करता है। That's it. This is all about your this agricultural workers. Second is the rural laborers. Under इसका बेस ईयर हमने ये लिया था ना 2016। इसका बेस ईयर अभी हमने जो लिया हुआ है वो 1986-87 ही ले रखा है, ऊपर वाले का 86-87। फर्दर इज द रूरल लेबरर्स, अगेन सेम स्टोरी, 600 villages data collected on the basket contained 260 items. Agriculture, labor and rural labor are overlapping in India. That's why government dropped in 2001-2. But after changes, it changed the central. The index was derived again. अच्छा जी, अब ये कौन से हैं? रूरल लेबरर्स है ना। रूरल लेबरर कौन है? रूरल एरिया में लेबर का वर्क करने वाले लोग। सेम 600 villages, monthly data, 3 week time lag, 260 items. सेम चीज डेटा कलेक्ट करने के लिए ली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इंडिया में? रूरल लेबरर एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये दोनों सेम है। लेबरर्स कह लो, वर्कर्स नहीं कहना, तो ये दोनों सेम है। जो एग्रीकल्चर का काम 6 मंथ में करता है, उसके बाद अगर वो फ्री हो जाता है, वो कोई लेबर का काम करना शुरू कर देता है। लेबर वाला जब 3 महीने अपनी जॉब फ्री हो जाता है, अपनी जॉब अपने वर्क से, वो एग्रीकल्चरिस्ट का काम करना शुरू कर देता है। सो ये दो, बोथ ऑफ द वर्क्स आर समवेयर समहाउ नॉट एबल टू डिफाइन सेपरेटली कि किसको एग्रीकल्चर वर्कर कहना है, किसको रूरल लेबर कहना है। इसकी वजह से 2001 में गवर्नमेंट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था कि ये वाला मेजर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दोनों लेबर्स को कैलकुलेट करना और डिफरेंशिएट करना इज नॉट इजी in Indian economy. But with some revisions, the central has again calculated a new index. दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। 2001 and 2 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है जी, मतलब इसकी सेम वही चीज रहेगी, लेबर ब्यूरो ही कैलकुलेट करता है और ये सेम स्टोरी डेटा के लिए कलेक्ट की जाती है। जो लास्ट वन है नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, इट इज टू बी द अर्बन एरिया। अभी तीनों चीजें जो हमने की हैं वो किसकी थी?
रूरल एरिया की। अर्बन एरिया का भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है। अर्बन एरिया के कैलकुलेशन करने के लिए हमने 59 सेंटर्स लिए हैं। इन 59 सेंटर्स में हमने सेम डेटा कलेक्ट किया ऑफ 2 वीक्स टाइम लैग। यहाँ 3 वीक्स टाइम लैग था, यहाँ पे 2 वीक्स टाइम लैग लिया। 2 वीक्स टाइम लैग का उनका मंथली डेटा कलेक्ट किया। बस यहाँ पर विलेजेस की जगह 59 सेंटर्स आ गए और यहाँ पे मंथली डेटा ही होगा 3 वीक्स की जगह 2 वीक्स का टाइम लैग आ गया। तो इनका भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है। उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इनकी वेजेस डिसाइड की जाएंगी कि अर्बन एरिया में क्या एम्प्लॉयर्स को इनकम मिलना चाहिए सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी कर्ब्ड विद द सेम। ठीक है जी। एंड इट इज कंप्लाइड बाय कैलकुलेटेड बाय NSO। NSO और NSSO में क्या फर्क है? NSSO CSO में क्या फर्क है? CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफ, सबसे पहले क्या था? ऑर्गेनाइजेशन, देन इट बिकम्स ऑफिस, नाउ इट बिकम्स NSO। NSSO एक अलग है, CSO अलग है, दोनों को मिलके NSO बन गया। So NSO is calculating the data of this. Getting the point? So 2011 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसकी जगह पे जो बन गया है वो बन गया CPIC आई थिंक, और अर्बन, रूरल और अर्बन का कंबाइंड बना दिया। पहले देखो, अभी इसके बाद हम यहाँ बताएंगे, रुको पहले ये अर्बन बना। जो हमारा टोटल CPI होता है ना, वो CPI ऑफ रूरल प्लस अर्बन दोनों का होता है, तो फिर इसको CPIC बोल देते हैं। ये CPI अर्बन हो गया, ये CPI रूरल हो गया, ये सारे रूरल एरियाज है ना, ये रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया, ये दोनों को मिला के हो गया। इसके अंदर हम उन वर्कर्स को भी कैलकुलेट कर देते हैं जिसको हमने इसमें छोड़ा था, इसमें एम्बेसीज और बैंक्स को छोड़ दिया था ना, दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम। इसमें सारे तरह के वर्कर्स आ जाएंगे, बैंकिंग के भी आएंगे, इंश्योरेंस के भी आएंगे। और अगर कोई, इसमें एक डिफरेंस ये भी रहता है, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल इसलिए होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया गवर्नमेंट ने। रीजन इज दैट बिकॉज इन दिस जो फॉरेन एम्बेसीज के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनके इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना इट्स बिट डिफिकल्ट, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट सो इजीली। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इसमें जो एम्बेसीज और बैंकिंग के, इंश्योरेंस के एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करती है, इसमें उनको नहीं करती है। ठीक है, सो बिकॉज वो लोग कहीं भी काम कर सकते हैं ना, एम्बेसीज अर्बन एरिया में रहेगी ना, रूरल एरिया में तो एम्बेसी नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई वो जो है वो अर्बन एरिया में होते हैं। इसी तरह एयरलाइंस के जितने भी लोग हैं, एयरलाइंस विल भी रूरल एरिया में नहीं होगी ना, अर्बन एरिया में ही होगी, तो इसमें दो चीजों का एक्स्ट्रा डिफरेंसेस आते हैं। Getting the point? So this is all about how we calculated the different kinds of consumer price indexes. Okay. One more thing we need to add it over there, that is to be important. ये shall I remove? हाँ. इसमें I think इसमें 260 आइटम्स ही हैं। आइटम सेम रहेंगी क्योंकि डेटा सर्वे सेम हो रहा है ना। इसमें गवर्नमेंट ने इसको कंबाइंड कर दिया ना, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया ना, कि ये कैलकुलेट करना मुश्किल है इंडिया में, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दो। फिर भी उसने कहा कि उनकी कैटेगरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्टिव, कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से जॉब में हो, फुल टाइम, नॉट लाइक हाफ टाइम यू आर इन रूरल वर्कर एंड थर्ड टाइम यू आर बीइंग एग्रीकल्चर वर्कर। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वर्कर के कैटेगरी में। जैसे हम इंडिया में मार्जिनल, सेमी मार्जिनल, अर्बन, रूरल वर्कर्स के डिफाइन करते हैं, ऐसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, इसलिए लेबर ब्यूरो ने इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए कह दिया। इसको भी डिसकंटिन्यू क्यों हुआ? क्योंकि इसने कहा अर्बन तो आप ले ही रहे हो, सिर्फ 2 ही लोग तो नहीं ऐड किया आपने। इसी तरह इसमें तो ये चीजें तो ले ही रहे हो, डाटा भी सेम कलेक्ट हो रहा है, फॉर्मूला भी सेम है, तो ये अल्टीमेटली दोनों रह गए, एक रूरल का, एक अर्बन का, एक रूरल का, एक अर्बन का, और ये कंबाइंड बन गया। ठीक, जैसे कल हमने किया था कि
WPI में कितनी आइटम्स हैं और उसको कहां कहां डिफाइन किया गया है, कितना परसेंटेज दिया गया है। सेम एज CPI का भी हम टेबल चेक करते हैं, हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर, हाउ अनडिफाइंड दे आर। सो CPI इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा एक चलो बाद में बताती हूँ। CPI को हमने कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। First of all, we talk about food, beverages and food and beverages. Okay? अभी आपको बाद में एक वर्ड लिखूंगी, वो आप बाद में देख सकते हैं कि क्यों मैंने उसको अलग कर दिया। अभी आप इसके साथ टबैको भी लिख लीजिए, बाद में इसको हम कट कर देंगे, उसको लास्ट नंबर बनाएंगे 6। हमने 6 नंबर लिखा है, ठीक है। आप जब अपना बाद में उसका न्यू और ओल्ड का डिफरेंस रखेंगे ना, तब आप उसको, आपको समझ में आएगा कि हमने 6 नंबर को काटा है। सो फर्स्ट वी आर लिखिंग, राइटिंग डाउन फूड, बेवरेजेस एंड योर टबैको। ओके, इसके अंदर भी हमारी बहुत सारी आइटम्स आती हैं। यू कैन राइट डाउन अंडर द फूड, वैसे इसकी जगह यहां लिख लो अंडर फूड, इसको नहीं मैं लिखूंगी भी, अंडर बेवरेजेस। फूड के अंदर आइटम्स लिख लीजिए। वी हैव सेरेल्स, पल्सेस, cereals, pulses, oil and fat, milk, egg, fish, ये एक ही है, milk, egg, fish। beverages के अंदर लिखिए, it is sugar and spices, fruits and vegetables, prepared meat, next is fuel, light, electricity and coal. Second main heading is, third one is housing, fourth one is clothing, bedding and footwear, and the last one is miscellaneous. Under miscellaneous we have education, healthcare, Medicare, education, Medicare and sanitation, transport and communication. Medicare, transport and personal care भी आ सकती है, छोड़ दो। Education, Medicare, transportation and communication, and sixth one which we have not included earlier, pan, tobacco and intoxicants, liquor and all comes under this. Just check it out. The big heart of Labor Bureau. They are calculating the intoxication as a necessity of consumers. Okay. So these are the things that is to be taken by the CPI once we are calculating the items. Once they are dividing into the different parts, they have given a different weightage too. जैसे हमने उसमें divide किया ना? Can you tell me the weightage? 3 weightages of WPI. Fuel and energy 13, 60, 64.7. Perfect, very nice. Same as we have a different categories and different percentage for that. 45.86% of weightage.
आउट ऑफ 100 इज गिवन टू द फर्स्ट आइटम, मतलब अपनी टोटल आइटम में से 45% वो फूड को और फूड आर्टिकल्स को दे रहे हैं, 6% आपका दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, 6.84% टू द इलेक्ट्रिसिटी, 10% और 10.07% you can say is to given to the housing and rental facilities. Clothing is getting 6.53, almost like the same as to be taken for the light and fuel, and 28% is for the miscellaneous. And the last one, the tobacco and all, is a 2.38%. So that's the percentage which is being divided by the CPI. इनका सम टोटल जो है हमारा 100% बनना चाहिए, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद कोई एक दो डॉट्स रहते भी हैं तो यू कैन जस्ट क्लियर अप इनटू द अकॉर्डिंगली। सो व्हाट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट, हमने पहले ही बता दिया कि सीपीआई जो है वो बहुत सारी आइटम्स का सम टोटल है, जिसमें से ये सारी आइटम्स को डिवाइड किया। अभी इसके अंदर हमारा न्यू एंड ओल्ड सीपीआई का डिफरेंस आ गया, 2011 के बाद हमने इसमें चेंजेस किए। ओल्ड वाले में और न्यू वाले में सिर्फ 2-3 डिफरेंस ही हैं। एक, इसमें 5 आइटम्स ली जाती थी, इसमें 6 आइटम्स ली जाती थी। जो ये 6 आइटम है ना, वो पहले वहीं पर थी, अब इसको अलग कर दिया। Are you getting it? So you can write down these 1, 2, 3, 4, 5, including tobacco. But after that 1, 2, 3, 4, 5, 6, tobacco is been taken as an another. Intoxicants को हमने अलग ले लिया, 6 आइटम्स ले लेंगे, ठीक है जी। पहले हम निकालते थे अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द इंडिविजुअल्स। दोनों के कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में फर्क आ गया है। अब जो है हम नंबर ऑफ कमोडिटीज जो है वो चेंज कर दिया है, उसकी मेथोडोलॉजी चेंज कर दी है। 6684 सैंपल ड्यूलिंग वाज देयर, अब उसका सैंपल ड्यूलिंग हमने डबल कर दिया 13364। So it means the number of items to be including as a sample that has been doubled. As the population is increasing, that we have to increase the number ना। तो ये हमारे 3 डिफरेंसेस आए हैं न्यू एंड ओल्ड सीपीआई में। Getting? What is the difference between the arithmetic mean and the geometric mean? Can you? हाँ जी, नहीं, कैन यू? हाँ जी, अंडर रूट, या डिफरेंस क्या आता है? फॉर्मूला तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ना। देखिए, जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ना, अर्थमेटिक मीन क्या कहता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, 15 हो जाएगा टोटल। हाँ 15 होगा ना, 15 डिवाइड बाय 3 इज मिड आ गया अर्थमेटिक मीन। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5। एवरेज क्या? 15/5 इज 3। 3 इज अ मिड टर्म, अल्टीमेटली मिड टर्म एवरेज वैल्यू आ रही है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं 1 + 2 + 3 + 20 + 100 डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा? 1, चलो यही ले लो, ये ले लो, कितना हो गया? 125। 125 डिवाइड बाय 5, 25। क्या ये एवरेज है? ये क्या बता रहा है? अर्थमेटिक मीन हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से इन्फ्लुएंस होता है। हुआ ना इन्फ्लुएंस? जैसे हमने 100 लगाया, बड़ी वैल्यू लाए, तो हमारा अर्थमेटिक मीन ही चेंज हो गया, वो इन्फ्लुएंस हो गया हाईएस्ट वैल्यू से। अब मैं इसकी जगह 1000 लगा देती हूँ, ठीक है, इसी के पीछे 1000 लग जाएगा, इसके पीछे 1000, लेट इट बी, आई एम टेकिंग एग्जांपल ओनली। तो अब बाकी सारी वैल्यूज जो थी वो 1, 2, 3, 4, 20 से नीचे की थी, एक वैल्यू 1000 की थी, तो हमारा अर्थमेटिक मीन सबको इग्नोर करके 250 की तरफ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू से इन्फ्लुएंस हुआ। ज्योमेट्रिक मीन जो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि वो
अर्थ अंडर रूट होता है सारी वैल्यूज का. So that's why whenever we are calculating something towards a geometric mean, it is more comparatively better picture because वो highest और lowest value से influence नहीं होता, वो सबको equivalent value देता है, जबकि arithmetic mean हमेशा high value से influenced हो जाता है. Getting? ये वैसे ही आपको इसके साथ जरूरत नहीं है, वैसे पता होना चाहिए कि क्या इसका रोल होता है. Done. So that we have changed. क्योंकि हमें स्टार्टिंग में यही लगता था कि हम सारी वैल्यूज को इकट्ठा लेते हैं, बट इट इन्फ्लुएंस. कोई एक अगर हमारा फूड वाला पार्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस कर गया तो सीपीआई इफेक्ट हो जाएगी, चाहे ये सारी चीजें सस्ती हो. इमेजिन करिए आपका घर का रेंट भी उतना ही चल रहा है, आपको लाइट इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी उतना देना है, फूड क्लोथिंग ये फुटवेयर वगैरह सेम है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके खाने में से ये फ्रूट वेजिटेबल स्पाइसेस का प्राइस बढ़ गया, आपका खर्चे का ज्यादा हिस्सा बढ़ गया, तो आपने कहा जी इन्फ्लेशन आ गया, जबकि वो इन्फ्लेशन नहीं है. इन्फ्लेशन होना चाहिए सारी चीजों के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो वो अर्थमेटिक मीन उसको इफेक्ट करता था. यहां इन्फ्लेशन आता था तो वो टोटल सीपीआई को बढ़ा देता था, लेकिन उसने कहा नहीं, इट शुड बी कंबाइंड, all the values should be combinedly included. That's why they have taken the geometric mean. Done. So these are the three differences between the old and new CPI and the combinations of CPI. Is that clear? चलें आगे, चलिए. हाँ जी, क्या हुआ है? ओल्ड सीपीआई का 1982, 86, 1986, 87 तीन का जो हमने लिया ना, सिर्फ एक का जो हमने अर्बन वाला लिया उसमें 2011 बेस ईयर है अभी का, बाकी सारों में 86, 87 बेस ईयर है. इसी तरह उसका भी बेस ईयर 86, 87 था, इसमें हमने 2011 में चेंज किया न्यू सीपीआई. बेस ईयर नहीं चेंज किया हमने, उसकी फॉर्मूलेज और ये सब चीजें की मेथोडोलॉजी और उसके आइटम्स को चेंज कर दिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हु कैलकुलेट सीपीआई. अभी तो पता है एनएसओ और सीएसओ. एनएसओ कौन सा कैलकुलेट कर रहा था? The last one, non-manual वाला. Total CPI is being calculated by CSO and under the CSO comes under MOSPI. ये नहीं भूलना है, ये हर जगह कर रहे हैं हम लोग ना. CSO is being calculated by, sorry, CPI is being calculated under the डन. ये इसके अंडर ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ थिंग है, ये कैलकुलेट करता है डेटा किसके लिए? सीपीआई के लिए. सो ये डेटा ये कलेक्ट करते हैं, इसकी एडवाइजरी कमेटी ये वाली होती है. अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, जिसमें से मेन क्वेश्चंस आपके बनते हैं. होपफुली यू विल एबल टू गेट बाय ऑन, बट स्टिल वी नीड टू गिव इट समथिंग बेसिक्स. चलिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का डिफरेंसेस देखते हैं. एजेंसीज कौन सी एजेंसीज करती हैं? ओके, बिफोर गोइंग टू एजेंसीज अ बिट पार्ट, जो हम बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट में बात करते हैं, जो इनकी पार्टीज हैं. इसकी कौन है? कंज्यूमर. इसकी है पार्टी प्रोड्यूसर. इफेक्ट किसको करती है? वो कंज्यूमर को करती है, वो प्रोड्यूसर को करती है, या फिर प्रोड्यूसर के साथ लिख लीजिए होलसेलर्स को करती है. डन. पब्लिशिंग एजेंसी, पब्लिश्ड बाय लिख लीजिए, अगर ऐसे एजेंसी नहीं लिखना. पब्लिश्ड बाय. डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है? यस यस, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. डन. एंड इट इज डन बाय एनएसओ, सीएसओ, मॉस्पी. वो मॉस्पी के अंदर होता है और लेबर ब्यूरो के अंदर होता है. ये मॉस्पी एंड
लेबर ब्यूरो। ये कौन कर रहा है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मैं दोबारा से फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, है ना, वो इट इज बेसिक मीनिंग ऑफ, हम इसको पहले बता चुके हैं। सो इट कम्स अंडर द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर under the Ministry of Industry and Commerce that we have done yesterday. Okay, base year WPI का बेस ईयर हम लेते हैं जी 2012, 11-12 और इसका ले रहे हैं 2012। सेम है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। ठीक है जी। He used financial year, he used calendar year. You can write down in the bracket of this thing. ये फाइनेंशियल ईयर की बात करता है, ये कैलेंडर ईयर की बात करता है ना। वो 1 to 31 करता है, वो मार्च टू अप्रैल की बात करता है। It includes only goods. It includes goods and services both. It includes goods and services both. CPI includes on the behalf of rural and urban. रूरल अर्बन के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। ये कितनी कमोडिटीज लेता है? 697 आइटम्स, isn't it? ये 697 आइटम्स लेता है। ये 448 एंड 460 आइटम्स लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रूरल एंड अर्बन। जब वो डेटा कलेक्ट करता है, ये आइटम्स होती हैं रूरल की, ये होती हैं अर्बन की। $697 items are been included under this, and here we are talking about only, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो इसमें आई नहीं ना, माइनिंग की, पेट्रोलियम की, स्टील, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स हम इसमें नहीं ले रहे हैं, तो इसकी आइटम्स कम होंगी ना। ये कंजम्पशन बेस्ड पे है, हालांकि इसमें सर्विसेज ऐड होती हैं, लेकिन हम प्रोडक्शन वाली कमोडिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी आइटम्स जो है कमोडिटीज की वो थोड़ी सी कम होती हैं। बेस ईयर फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रूरल अर्बन एंड इट इज इंक्लूडेड ओनली, मतलब इसका मतलब है ये हम रूरल अर्बन एंड कंबाइंड तीनों की निकालते हैं, वो वन टाइम होता है। इसमें रूरल की अलग निकालते हैं, अर्बन की अलग निकालते हैं, कंबाइंड सीपीआई अलग निकालते हैं, उसमें हम एक ही बार निकालते हैं टोटल का। ओके, ये हमारा मंथली 14th डेट जिसे हम कह सकते हैं 14th ऑफ एवरी मंथ मंथली निकाला जाता है। 14th ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की 14th डेट को ये पब्लिश किया जाता है, और वो जो किया जाता है वो प्राइमरी आर्टिकल्स का अलग निकाला जाता है और ओवरऑल का अलग निकाला जाता है। प्राइमरी डेटा दिया जाता है वीकली बेसिस पे, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स 3 है ना बेटा, उसमें प्राइमरी फूड एंड फ्यूल, सॉरी कोल एंड फ्यूल, एंड थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। तो वो प्राइमरी आर्टिकल का जो खर्चा है, अब आप देखोगे अगर न्यूज़पेपर में आपको मंथली बेसिस पे होलसेल प्राइस इंडेक्स चेंज हुए दिखते हैं, कभी देखा है? काली मिर्च लुढ़क गई, वो उछल गई, वो बढ़ गई, वो कम हो गई, हैवंट सीन एवर? कभी नहीं न्यूज़पेपर पढ़ा? चलो अगर नहीं पढ़ा तो कभी देखना। दे हैव गिवन द बेसिक प्राइजेस ऑफ बल्क, कि पूरे हमारे पूरा हल्दी का प्राइस बढ़ गया, काली मिर्च का प्राइस कम हो गया, होलसेल पे, वो वीकली बेसिस पे प्राइमरी आर्टिकल्स का दिया जाता है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स होते हैं वो ओवरऑल मंथली इंडेक्स निकाला जाता है हर फर्स्ट थर्सडे को। सो दिस इज ऑन द जनरली थर्सडे। ओवरऑल इंडेक्स जो है वो मंथली निकालते हैं, बेसिकली थर्सडेज को। डन। So this is on weekly basis and generally on Thursday overall basis. ये दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये मंथली बेसिस पे हर मंथ की 14th डेट को निकाला जाता है। ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है।
ये फाइनल स्टेज है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास पहुंच गया है, वो अभी प्रोडक्शन से लिमिट से बाहर आना है, मार्केट में आना है. सो दैट इज अ प्राइमरी स्टेज व्हाइल इट इज योर फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वैल्यू, बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर सर्वे. मालूम है ना वो किसके बेस पे होता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे. और वो जो होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे होता है. ये प्रोडक्शन वैल्यू के बेसिस पे है. ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे है. डन. वन मोर डिफरेंस इज दैट यू कैन एड इट. इसका जो हमने स्टार्ट किया था बेस ईयर, जो शिफ्ट किया है हमने, स्टार्टेड इन 2004 और उसका है 2012. ये अभी इसका बेस ईयर हमने भी आपको बताया ना, 2012 में इसको चेंज करके हमने नया एड अपॉन किया है. इट इज 2012, वही जो उसका बेस ईयर का अकॉर्डिंग है. एंड दिस इज स्टार्टिंग बाय 2004. इसको last one more difference is there. You can take it if you want. You must be remember, I believe. इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स को सिर्फ दिया जाता है 22.6%. इसमें दिया जाता है ऑलमोस्ट 45%. ये जो पहला वाला हमने डिस्कस किया ना, सबसे पहला. Are you getting? तो इसमें प्राइमरी मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन को कितना अहमियत दे रहे हैं. तो ये बहुत कम अहमियत दे रहे हैं और ये ज्यादा दे रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को. सो दे आर गिविंग मोर वेटेज टू द फूड इन्फ्लेशन रेदर देन दिस बीइंग टेकन. ठीक है जी. एक लास्ट जो रिजल्ट्स हैं वो आउट ऑफ ऑल, दे सेड दैट इन 2014 गवर्नमेंट डिड वन थिंग. गवर्नमेंट ने WPI से CPI को मेजर कॉन्सेप्ट मान लिया है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए. 2014 से पहले गवर्नमेंट WPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करती थी इकोनॉमी एज अ होल, लेकिन अब उन्होंने CPI को काउंट करना शुरू कर दिया है फॉर द इन्फ्लेशन. क्यों? ये कंपैरेटिवली कंज्यूमर्स की पिक्चर को दिखाता है और वो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेता है. ये सिर्फ गुड्स को लेता है. ये ज्यादा नो डाउट इसमें आइटम्स कम होती हैं, लेकिन ये कंज्यूमर के रियल पिक्चर को दिखाता है. तो दैट्स व्हाई नाउ वी आर टेकिंग और मेजरिंग द इन्फ्लेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द CPI रेदर देन WPI. ये चेंज कब आया? 2014 में. तो यहां तक आपका CPI, WPI, the basic measures of inflation is being completed. Done. ये इनमें से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है. कोई ना कोई कंपोनेंट्स, कोई ना कोई ईयर, कितनी तरह के होते हैं, कौन कैलकुलेट करता है, कितनी आइटम्स आती हैं, रूरल वाला क्या है, अर्बन वाला क्या है, ये इन्हीं का डिफरेंसेस जो हैं, you will get some question out of it. So please keep it very consciously. Let's move ahead. एक दो पॉइंट्स और हैं वैसे इसमें करने के लिए. If I talk about the CPI only, Consumer Price Index ही, उन्होंने कहा जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि 2014 में हमने चेंज किया CPI को, अब मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कर लिया. उससे पहले का अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अनाउंस CPI फॉर रूरल डिफरेंट, अर्बन डिफरेंट एंड कंबाइंड डिफरेंट. तो गवर्नमेंट ने वो वाला तब यूज करते थे हम जब 2010 और 11 को बेस ईयर मानते थे. 2014 में गवर्नमेंट ने बेस ईयर भी चेंज कर दिया, मेथोडोलॉजी भी चेंज कर दी. मेथोडोलॉजी चेंज क्या की? अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन लेके आए. तो हमने एक तो बेस ईयर चेंज किया और मेथोडोलॉजी चेंज की. देन वी हैव चेंज द दैट इज बीइंग डन इनटू 2015. 15 में हमने दो चेंजेस लाए हैं, बेस ईयर को चेंज किया और मेथोडोलॉजी को चेंज किया. एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज URP एंड MRP? Yes, perfectly. Uniform reference prices and
मिक्स्ड रेफरेंस प्राइसेस, हमने यूआरपी की जगह एमएमआरपी मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस प्राइसेस को अडॉप्ट किया है। तो ये 3 डिफरेंसेस आए हैं, बेस ईयर चेंज, मेथोडोलॉजी चेंज, एंड द थर्ड वन इज यूआरपी की जगह एमएमआरपी को हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। What's your name? Chandar. What is the meaning of MMRP? If you remember. कोई बात नहीं। Very nice. Perfect. What is URP? Good. So that is the same thing which we have. Please keep in your mind, because जो पीछे कोई ना कोई रेफरेंस वर्ड आता है, वो रेफरेंस आगे किसी ना किसी चीज में यूज होगा। अब जैसे इसमें CPI, WPI और ये चीजें यूज हुई हैं, आगे जाके आपको यही कहीं ना कहीं यूज आने वाली हैं। तो प्लीज कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट MRP, तो आपको वो याद आना चाहिए कि कितनी आइटम्स के बारे में बात की थी, कितने कौन से कमोडिटीज की और कौन से ईयर की बात की गई थी। डन। सो नाउ वी हैव चेंज्ड फ्रॉम यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड से मिक्स्ड मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड ले लिया। इसका मतलब हमने अपनी कमोडिटीज को एक्सटेंशन दे दिया, कमोडिटीज को भी, ईयर्स को भी और टाइमलाइन को भी। तो दैट्स व्हाई मीन मोर apprehensive and more comprehensive picture has been taken under the CPI. Done. So further we have some of the effects of inflation. I can take it if you want. We just need not to write down and need not to go through with so much. We'll just discuss in random way. Effects of inflation. Inflation के effects क्या क्या आते हैं? If I'll say on the creditors and debtors, effect of inflation on creditor and debtor, क्या effect आ सकता है? Creditor कौन होता है? उधार देने वाला। डेटर कौन होता है? उधार लेने वाला। तो क्या इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का? कौन फायदे में रहेगा? कैसे? हमने लोन पहले लिया था ना, अब इन्फ्लेशन आया, सोचिए आपको मैंने 100 रुपीज दिए थे 1 वीक पहले, ठीक है? आप उस 100 रुपीज से 5 कमोडिटीज बाय कर सकते थे, 5 एप्पल्स बाय कर सकते थे। 20 रुपीज का एक एप्पल था, आप 5 एप्पल्स बाय कर सकते थे। आज इन्फ्लेशन हो गया और वो एप्पल का प्राइस 25 रुपीज हो गया। अब आप कितने खरीद सकते हो? 4। मैं आपको कह रही हूं आज मुझे 100 रुपए वापस कर दो, मेरे को फायदा है कि नुकसान? मैं कौन हूं? क्रेडिटर। आप कौन हो? डेटर। तो डेटर को फायदा हो गया, क्रेडिटर को नुकसान हो गया। सो व्हेनेवर वी हैव इन्फ्लेशन, द क्रेडिटर आर ऑन बैड साइड एंड द डेटर आर ऑन पॉजिटिव साइड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ करेंसी हैज बीन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ जी, दोबारा बताएं। अब आपको लूं कोई चीज, पहले उनको दी थी, उनको समझ में आई। बच्चे देखो, पहले हमने 100 रुपीज से कोई चीज खरीदते थे, हम आपको 100 रुपीज दे रहे थे, तो आप 100 रुपीज से कोई सामान खरीद सकते थे, 5 एप्पल्स खरीद सकते थे। अभी क्या हो गया? अब मैंने आपसे 1-2 हफ्ते के बाद कहा कि मेरे 100 रुपीज वापिस करो। अब उस 100 रुपीज की वैल्यू कम हो गई ना। पहले आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी, आप अमीर होते थे। आज 100 रुपीज मिलते हैं तो आप अमीर नहीं हो। क्यों? मिल तो 100 रुपीज रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? क्यों फायदा नहीं हो रहा? इन्फ्लेशन आ गया। वो चीजें महंगी होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन होने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, मनी की वैल्यू कम हो गई। तो वही 100 रुपीज जो कल पहले आपको लिक्विडेटिव लगते थे, आज वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, और जिसने देने हैं उसको नुकसान हो रहा है। आज आपको मुझे 200 रुपए देने पड़ेंगे, तब आप उतनी परचेजिंग कर पाओगे। तो आई एम ऑन द बैड साइड एंड यू आर ऑन प्रॉफिट साइड। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज इट इफेक्ट्स ऑन लेंडिंग, उधार लेना। इट्स समथिंग सेम एज प्रीवियस वन। लेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप बताएं। लेंडिंग मींस उधार लेना, यही होता है लेंडिंग का मतलब? अच्छा, चलो दे भी सकते हैं, लोन देने वाले बन जाइए आप। बताएं। इन्फ्लेशन में लेंडिंग्स बढ़ती हैं कि कम होती हैं? वी नीड टू टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन इनटू द मिड। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है, वही मेजर रीजन है। हाउ द लेंडिंग्स बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन?
आप महंगाई में ज्यादा लोन लेते हैं या कम लोन लेते हैं? आपको लोन ज्यादा लेना पड़ेगा उतना ही कमोडिटीज को कंज्यूम प्रोड्यूस करने के लिए। पहले मैंने आज से 5 साल पहले अगर बिजनेस लगाना था तो मैं 1 लाख रुपया लेकर लोन पर बिजनेस लगा सकती थी। आज मुझे अगर बिजनेस लगाना है तो मेरे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हो गई, लाख रुपए में कोई बिजनेस नहीं लगेगा तो मुझे 10 लाख मांगना पड़ेगा। तो लेंडिंग भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो रही है। अब वो 1 लाख रुपया मेरे पास कॉस्ट को टोटल कवर अप नहीं करेगा, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए उतनी कॉस्ट को, उतनी मशीनरी को खरीदने के लिए। सो लेंडिंग इफेक्ट्स द इन्फ्लेशन रेट। और अगर सस्ताई हो जाती तो आई मे टेक इट ऑफ 50,000 रुपीज एंड आई कैन ओपन अप अ बिजनेस इन द सेम वे। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड बढ़ती है कि कम होती है इन्फ्लेशन में? The aggregate demand of a commodity starts falling whenever there is a inflation in the economy. On investment, investment बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी, because it's now costlier to have the same amount of money to keep it for the business, है ना? On income, ये दोनों साइड से हो सकता है। इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन का? इनकम पे क्या इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का? सेम वही बात है ना, हम आपको 100 रुपीज दे रहे थे सैलरी के रूप में, अब हम आपको 100 रुपीज देंगे तो आपको कुछ नहीं बनेगा। तो इनकम क्या होनी चाहिए? वही इनकम मेरे को सेटिस्फाई नहीं करती है विद द इन्फ्लेशन, बिकॉज मेरी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? रिवीजन इन इन्फ्लेशन, रिवीजन इन द सैलरीज और इट मे बी अ वेज रेट्स, चाहे वो रूरल का होगा चाहे वो अर्बन का, सबके साथ, है ना? ऑन सेविंग्स, सेविंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगे ना? इट्स अ वेरी गुड कोट एज शू लेदर कॉस्ट, इसको ये भी बोलते हैं। शू लेदर कॉस्ट का मतलब है कि आप बैंक में जाकर पहले अपना पैसा रखते थे बैंक में जाके एंड यू कीप let's say any thousand of money of new banks and you get it of 5% rate of interest. Because of inflation now the 5% rate of interest is nothing. आपको कुछ भी नहीं लग रहा। पहले आप 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 1000 रुपया लेके आते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से, तो आपको बहुत लगता था। लेकिन अगर आप आज 5 लाख के ऊपर 1000 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहे हो तो आपको लगता है 1000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। सो इट इज अ शू लेदर कॉस्ट। बैंक में बार बार चक्कर लगाने की मेरे शू इतने घिस जाएंगे जितने की मुझे वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलना। दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। नाउ द रेट एट विच आई वाज अर्लियर बाइंग अ कमोडिटी, नाउ दैट्स सपोज्ड टू बी डाउन। तो कई बार डेप्रिसिएशन जो होता है वो फायदे का हो जाता है। ऐसे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि इनकी कंट्री की करेंसी सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई, हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है। कैसे हो जाती है? कैसे बताएं मुझे, एग्जाम्पल दीजिए। बता सकते हैं? आप बताएंगे? नहीं, आप बता सकते हैं? एग्जाम्पल लो, कोई बात नहीं, वी ऑल विल डू टुगेदर। अर्ली कमोडिटी खरीद रहे हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो हम यहाँ पे ज्यादा रुपए देंगे ना, ज्यादा रुपीस देंगे ना। अगर 30 देंगे तो फिर हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई है, इसका मतलब। गेटिंग माय पॉइंट? कितना आना चाहिए? We would like to have more of imports and we would like to have more of exports, which will equalize the balance. Getting the point? तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो हमारी इकोनॉमी के इस इफेक्ट को पॉजिटिव कर रहा है। हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है लोगों के लिए हमारी चीज को बाय करने के लिए इंटीग्रेट करती है। हाँ जी। एंड व्हाट इज ऑब्वियसली इसके बाद हमने किया एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट के बाद। एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आ जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से आप ज्यादा चीजें बेचने लग जाओगे तो आपकी पैसे आने वाले बढ़ जाएंगे। कमोडिटीज जाती हैं तो पैसे आते हैं, कमोडिटीज आती हैं तो पैसे जाते हैं। हमने कमोडिटीज का बैलेंस नहीं करना, हमने पैसों का बैलेंस करना है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया? फायदे का हो गया। पैसे ज्यादा आएंगे और पैसे कम जाएंगे। दैट इज बी फेवरेबल फॉर द बैलेंस। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
इन्फ्लेशन से will be a less employment because of less investment. Yeah, maybe we may say that's because of less investment, but because of the people those who are producing earlier, now it become costly for them to hire you. उनको आपको हायर करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो 5 लोगों की जगह 2 ही लोग रखेंगे, तो वो उनको अपनी सेविंग्स बचाने के लिए, अपनी कॉस्ट को बियर करने के लिए, तो मार्केट में लोगों की रिट्रेंचमेंट होनी शुरू हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से. एंड वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस भी कम, इन्फ्लेशन आ गया, आपको भी पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, आप छोड़ दोगे, he will create more inflation. बताइए, डेयरलेंस अलाउंसेस तो मिलने ही मिल रहे हैं सैलरी क्लास को, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा डेयरलेंस अलाउंसेस मिलेगा, ईयरली 2 बार मिलेगा, तो उनकी तो वेजेस बढ़ जाएंगी. एंड क्योंकि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपकी मिनिमम वेज भी बढ़ेगी. तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट स्टार्ट मेकिंग प्रूव्स एंड फाइंडिंग द थिंग्स हाउ टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ अ वर्कर, वेदर इज अ वर्किंग क्लास के बेसिस पे. कोई अर्बन एरिया में तो उसको डीएल मिलेगा और रूरल एरिया में तो उसकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी. तो समवेयर समहाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स मोर बर्डन ऑन द इकोनॉमी. इकोनॉमी के ऊपर डबल बर्डन आ जाता है. एक तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन है कि इनको सैलरीज बढ़ानी है क्योंकि ये कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, उनको रॉ मटेरियल जो लेकर आ रहे थे उसकी कॉस्ट बढ़ गई है. सो समवेयर समहाउ इट इज क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस फॉर इकोनॉमी. मुश्किल हो जाती है इकोनॉमी को स्टेबल करना. One we have a thing is there, and we can take a topic later on. 2-3 चीजें जो important है that we will discuss and then after we will wind up. अभी हम इसी से रिलेटेड है 2-3 चीजें. इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप. Inflationary gap and deflationary. इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ गए. इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. Aggregate demand is greater than aggregate supply, then it creates an inflationary pressure. Reason behind it, people are demanding more of the commodities while the supply of the commodity is less in the economy, and that leads to increase the price increase, and that is called inflationary gap. Inflation आया और इन दोनों के बीच में gap create कर दिया, that is called inflationary gap. Under this situation, what should be the government procedure? Government को क्या करना पड़ता है? टैक्सेस आएगा. ये आता क्यों है? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि इन्फ्लेशनरी गैप आ गया? मे बी इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा होगा, कभी आपके पास पैसा आया और आपके आया तो आपने डिमांड करनी शुरू कर दी. सप्लाई इज ऑलमोस्ट समवेयर समहाउ इज कांस्टेंट. आई एम नॉट सेइंग सप्लाई इज डिक्रीजिंग. द सेम थिंग आई यूज्ड टू टेल यू लास्ट डे. हम सप्लाई को चेंज नहीं कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई है. सप्लाई उतनी ही रहती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. मे बी द गवर्नमेंट है स्पेंडिंग मोर, हमारे को कोई अलाउंसेस मिल जाते हैं, हमारे पास कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है. या फिर हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी शुरू होती है. एक ही बंदा 2 जॉब करने लग जाता है, आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, आप ज़्यादा इनकम जनरेट करोगे. सो इट क्रिएटेड अंडर over full employment. मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट पूरी है, सबके पास पैसा, सब खर्च रहे हैं, सप्लाई तो हुई नहीं, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. सो हाउ टू क्योर इट, दैट इज टू बी रिड्यूस. ये रीजंस हैं. एंड हाउ टू क्योर दिस, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल थ्रू द पॉलिसीज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल. गवर्नमेंट या तो मार्केट में पैसे को कंट्रोल कर ले, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा एंड योर डिमांड विल डिक्रीज, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट.
ये सप्लाई को कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ डिमांड को ठीक करना है, ये जो बढ़ गई थी ना इसको कम करना है, तो दोबारा बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। सो सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी होगी नहीं होगी, बट ये सिचुएशन पॉसिबल तो नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं पहले तो बताइए। जनरल इकोनॉमी में सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये होता है जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको जॉब मिलती है। आप काम नहीं करना चाहते और आप एम्प्लॉयड नहीं, तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं काउंट करेंगे। बट आज की सिचुएशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट सब हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आती है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है सम सेक्टर्स में। अभी आप आई डोंट नो many people can do 2 jobs, and आजकल this is the situation that if your earning hand is only one and if you have one source of income you cannot survive for a long time. You're a failure. You should have at least 2 to 3 sources of income, only then you can be a actual earner. अगर ये सोर्स आपके पास इनकम का है तो आप अर्नर नहीं है ना, तो वो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। नहीं तो आपकी 2 जॉब्स कोई और ले रहा होता ना, लेकिन आप ले रहे हो। वो क्या है, आप उसके साथ नेगोशिएट कर पा रहे हो। आप कहते हो कि मुझे जब तक 20 लाख की नौकरी नहीं मिलती मैंने नहीं करनी है। यू वॉन्ट टू डू द जॉब बट यू आर नॉट गेटिंग द जॉब बिकॉज द वेज रेट यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट इज नॉट देयर इन द इकोनॉमी। जितनी आप सैलरी की डिमांड करना चाहते हो, मैं 20 लाख पर काम करूंगा तो मैं एम्प्लॉयड होऊंगा। अगर मैं 20 लाख पे काम नहीं करूंगा, मैं अनएम्प्लॉयड में घर बैठना राजी है, तो यू आर नॉट कंसिडर एज अनएम्प्लॉयड। हम आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, ना फुल एम्प्लॉयमेंट में ना अंडर एम्प्लॉयमेंट में। आर यू गेटिंग इट? सो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब ये कभी होता ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है जितने लोग काम करना चाहते हैं, गिवन द वेज रेट, नंबर ऑफ जॉब सीकर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब एम्प्लॉयर्स, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। नेवर एवर भी, और कभी बराबर नहीं होते। 100 लोग इंटरव्यू देने आए तो 100 लोग ही जॉब्स होंगी, कभी ऐसा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू गेट कैटेगराइज्ड, स्क्रूटनी बढ़ती घटती जाती है। सो दैट्स द थिंग, दैट इज ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ये इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, ये फिर भी रीज़न नहीं हो सकता। लेकिन लोग इन्फ्लेशन, देखो अभी हमें ना रीज़न क्या है, हम लोग इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ एक चीज़ समझते हैं, क्या? महंगाई। क्या है किस चीज़ की महंगाई? अरे इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ विच गुड्स? आप किस चीज़ को देख के लगता है कि इन्फ्लेशन हो गया? बेसिक कंज्यूमर गुड्स, वही फूड, क्लोथिंग एंड ऑल XYZ। ठीक है, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते ना। घरों के फैक्ट्रीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते ना। तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कंज्यूम, तभी हमने WPI से शिफ्ट करके CPI किया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, मार्केट में स्टील का रेट बढ़ गया, आपने पूरी उम्र में एक घर बनाना है तो हार्डली मैटर स्टील का रेट उस टाइम क्या चल रहा होगा। ये थोड़ी इस चक्कर में कि कल 20 साल के बाद जब हम घर बनाएंगे स्टील महंगा होगा, आज ही बना लेते हैं। वी कांट डू इट ना, वी शुड मैनेज व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जब हमें उस चीज़ की कॉस्ट पता चलेगी हम तो उसको यूटिलाइजेशन कर लेंगे। लेकिन कंजम्पशन गुड को हम डिले नहीं कर सकते। अगर आज वी नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट वी हैव टू डू इट ओनली टुडे। हम उसको 5 साल के बाद पियेंगे तो उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा। तो कुछ कंजम्पशन जिनको डिले किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने WPI को हटा दिया कि घर बनाना और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील है, फर्टिलाइजर्स है, इनकी रिक्वायरमेंट आज नहीं है। आज की वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई हम CPI को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड को आज के टाइम में इफेक्ट करती है ना। On the second side, things are opposite to this. क्या होगा जी? Aggregate supply is greater than aggregate demand, and that is under the situation of underemployment. आपको full employment नहीं मिला, आप बेरोजगार हैं। It is a situation under employment, डिफ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट्स भी हो सकते हैं। इसके कारण भी गवर्नमेंट ने हो सकता है ज्यादा पैसा खर्च किया आपके ऊपर। एक्सपेंडिचर यहीं से तो आया है ना। उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल सरप्लस हो गया तो गवर्नमेंट ने पैसे बचा लिए, सप्लाई ज्यादा कर दी है। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक एग्रीगेट स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन भी आ जाता है।
अब देखो आप कहोगे यहाँ तो सप्लाई ज्यादा है, हाँ आप कह रहे हो कि स्लो डाउन आ गया। कोरोना भी है। There was more supply in the economy, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आप उसको खरीद नहीं रहे, क्यों? आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जब सप्लाई हो और एम्प्लॉयमेंट ना हो, आप डिमांड नहीं करोगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन की जगह डीफ्लेशन हो जाता है। हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय प्राइसेस जो होते हैं मार्केट में कम होने लग जाते हैं। जब मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं तो इकोनॉमी किस साइड जा रही है? स्लो डाउन की तरफ। कभी भी ना रिसेशन नहीं बोलना है, रिसेशन इज अ बिग वर्ड, स्लो डाउन इज समथिंग एल्स। स्लो डाउन का मतलब होता है इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, रिसेशन का मतलब तो ऑप्टिमिज्म हो जाता है कि सब कुछ खराब हो गया, ना इन्वेस्टमेंट है, ना सेविंग है, ना इनकम है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो सब कुछ स्लो डाउन की बात है। स्लो डाउन का मतलब होता है कि धीरे धीरे कम होने की तरफ में है। अगर ये काम 4 साल 2 साल ये काम चला तो इकोनॉमी पक्का रिसेशन में आएगी, और रिसेशन के बाद स्लोली डाउन, स्पीड अप से वो डिप्रेशन में आती है। तो हम स्लो डाउन की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग डिमांड, अगर कोरोना 2 साल की जगह 5 साल चलता तो इट मे बी वी कम अप टू द रिसेशन। स्लो डाउन हो गई थी इकोनॉमी 2 साल में, रिसेशन पे आ गई थी, रिसेशन के बाद डिप्रेशन में आ गई। तो दैट्स मे बी अ सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में करना क्या? इसमें एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो मन लोग हैं वो सारा सेविंग कर रहे हैं, डिमांड कम करनी है, कैसे भी कर दो, दोनों की तरफ से कहीं से भी पकड़ लो। चाहे इसको कह दो कि डिमांड कम हो गई किसी भी वजह से, पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिमांडिंग, दे आर नॉट गेटिंग वेजेस, दे आर नॉट डिमांडिंग। पैसा ही नहीं है तो कहाँ से डिमांड करेंगे? और सप्लाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जो अनसोल्ड स्टॉक बचा था वो मार्केट में आ गया, एंड दैट इज टू बी क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, दैट क्रिएट्स अ डिफ्लेशनरी प्रेशर, डिफ्लेशनरी गैप। इसको आउटपुट गैप भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम इसका आउटपुट गैप भी होता है। The gap between the production sold and production received by the people. ये कुछ टर्म्स हैं जो शॉर्ट टाइम के अंदर ही कहीं ना कहीं मिक्स मैच सी वी कैन यूज। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशन वेज स्पाइरल बोलते हैं वैसे इसको। सो इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। आगे जाके मैं जो वर्ड लिखूंगी तो इन्फ्लेशनरी वेज स्पाइरल लिखूंगी, वेज प्राइस स्पाइरल। ये वैसे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता है जिसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। कौन? वेजेस प्राइस को, प्राइस वेजेस को, और वो इकोनॉमी उसी राउंड में चलती रहती है, स्पाइरल बन जाता है, उससे निकल नहीं पाते। किस तरह का स्पाइरल बनता है? इट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस बढ़ने से क्या होगा? आप क्या करोगे? डिमांड नहीं कम करोगे, यू विल आस्क फॉर मोर वेजेस। लाइफ में मेन फंडा यही रहना चाहिए, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो यू नीड टू आस्क फॉर मोर रेदर देन डिक्रीजिंग योर कंजम्पशन। आपको अगर उतनी कमोडिटी महंगी हो गई तो खाना कम नहीं करना है, उसके लिए मोर मेहनत करनी है कि वो खाना उतना मैं अपना एक्सेप्ट कर पाऊँ। सो दैट्स व्हाई दे सेड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंक्रीज द वेज रेट्स। कैसे कराओगे? वेज रेट कैसे बढ़ेगा? गवर्नमेंट ही बढ़ा देगी, गवर्नमेंट के पास सीपीआई है। अरे गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी तो यू विल क्रिएट अ, क्या करोगे? वेजेस क्यों बढ़ते हैं? और कम हो जाएंगे मोर एम्प्लॉयमेंट से वेजेस। प्रोटेस्ट का अच्छा वर्ड क्या होता है? ट्रेड यूनियंस बनाएंगे। यू विल क्रिएट अ ट्रेड यूनियंस, यू विल क्रिएट अ आपका एम्प्लॉय यूनियंस, ताकि आप अपने वर्ड्स के लिए सेक रख सकें। So that's why they said that whenever there is starting there is an inflation in the economy। हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन होने की वजह से अब सबसे पहले क्या हुआ? आपकी कंज्यूमरेबल गुड्स का प्राइस बढ़ा, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को किससे कंसीडर करते हैं? कंजम्पशन गुड्स से। प्राइस इंक्रीजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स,
कंज्यूमर गुड्स के प्राइस बढ़ने के लिए यू विल लाइक टू आस्क फॉर मोर वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस. You will ask for a higher wages, which so that I can sustain my consumption, whatever I was consuming earlier. So I will demand for higher wages will increase. अगर higher wages की डिमांड करोगे तो क्या होगा? अगर आपकी वेजेस को माना जाता है, गवर्नमेंट भी मान लेती कि हाँ महंगाई होगी, इनका डीए बना दो, इनका वेज रेट बढ़ा दो, उससे क्या होगा? ये हो जाएगा. आपने अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए कहा, आपकी वेजेस बढ़ा दी गई. मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको जब हाई वेजेस दी तो मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी क्योंकि आप मेरा इनपुट हो. फैक्टर को बनाने, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर का इनपुट का प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो मैंने क्या करना है? मैंने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देना है. उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन आया वो फिर वेज रेट बढ़ाएगा, तो आप इसी स्पाइरल में फंस जाते हैं. वेज इंक्रीजेस प्राइसेस, प्राइसेस इंक्रीजेस वेजेस. दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. दोनों एक दूसरे के बीच में स्पाइरल के रूप में एक लूप बन जाता है. So it is a positive loop which we cannot be break up by any situation. I think that's enough for today. Now further we will talk about, इसके बाद एक चीज़ हमें डिस्कस करनी है. अब तो इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है जी, किस तरह से आया, कैसे आया, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. अब उसको ठीक कैसे करना है, कौन सी चीज़ें सॉल्व, मैंने भी बात करना. अभी जो इन्फ्लेशन आ गया उसको ठीक कैसे करना है. एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी. आरबीआई इसको ठीक करेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ठीक करेगी, क्या दोनों मिलकर उसको ठीक करेंगे? क्योंकि दोनों ने अलग अलग स्टोरी, अलग अलग अपना रोल प्ले करना है. गवर्नमेंट ने क्या करना है, दे विल गिव ऑन देयर इंस्ट्रक्शंस कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए. आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, इट्स आरबीआई एंड समवेयर अनदर बैंक वुड बी देयर. कोई भी जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी वो उसको कंट्रोल करने के लिए आगे पॉलिसीज मेंटेन करेगी. अब वो एक कमेटी बनाएंगे कि कौन कौन लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे. There will be have a committee when it is being constructed. How many people are there? उन लोगों को इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो आता है, 65GB उसके अंडर आता है, तो कौन उसको रूल करता है. अगर कोई एक मेंबर है वो कौन सा होना चाहिए, 3 मेंबर कौन से होते हैं, पहला मेंबर एब्सेंट है तो कौन उसकी जगह पे वोट करेगा. दैट इज टू बी कमेटी एंड दैट इज टू बी वेरी फेयरली. यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन उस कमेटी का पार्ट एंड पार्सल है और उस कमेटी का वर्किंग क्या है, वो करते क्या, so that we can cure the inflation if any economy is suffering from that. तो हम इसमें एक एंड लास्ट विद से वी आर गोना वाइंड अप. इकोनॉमी में हम बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसका एक बेस रेट डिसाइड करते हैं कि हम कितना इन्फ्लेशन को बियर कर सकते हैं, which is considered as to be healthy inflation. They said that it is just like 4% plus 2 minus 2 base. कि 4% इन्फ्लेशन को हम इट वॉज इन 2011 ओनली 2015 सॉरी 2000 मार्च 2015 तक उन्होंने 4% इन्फ्लेशन को कंसिडरेबल रखा था. +2 - 2 इज ओके. अगर 2 बढ़ गया, 4% हमने टारगेट रखा है और 6% तो हो गया, ओके हम मैनेज कर लेंगे. और अगर कम हो गया तो इट्स ओके, फिर तो वैसे ही बढ़िया है. तो 2 to 6% इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन which can be controlled by economy. But if it is comes after 6%, then government has to take some steps. तो वो एक बेस बना लेते हैं कि हम एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन, हेल्दी इन्फ्लेशन. तो अभी तक हमने इसको 4% रखा हुआ है कि 2 + -2. तो दैट इज टू बी अंडर द कंट्रोल. बट आफ्टर इट कम्स 6% अबव एंड लेस देन 2%, डिफ्लेशन भी गलत होता है.
वो भी इकोनॉमी को खराब कर देता है, सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, इकोनॉमी रुक जाती है। तो हमने लेस डाउन भी नहीं होने देना, 2 से नीचे भी नहीं जाने देना। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ कमेटी, रिव्यू कमेटी जो उसको रिव्यू करेगी और उसके लिए पॉलिसीज मेंटेन करेगी। दैट वी विल डिस्कस टुडे।